Uh, we discuss and describe uh, our objectives as forensic psychiatry is description. Who is the insane person and what is the mental health and its law, which is known as the Mental Health Ordinance 2001. Uh, Further, we differentiate and define legal and legal insanity and the medical insanity in today's lecture. We also explain the procedure of admission of a mental patient in the mental hospital in our scenario. Uh, Mental illness. If we say that mental and behavioral disorder, which are clinically significant conditions, and they are characterized by alteration in the person's thinking, its uh, emotions, and mood variations, and the changes in the behavior which are associated with the personal distress and impaired functioning of his mental capacity. There are some characteristics. A change in the thinking, memory of a person. It's a perception. What person feels, how he judges the judgment, his judgment and speech position. Further, day-to-day activities which are concerned the person's work and relationship with the important others, how he normally dealing with the person or his there is some disturbance in his activities. Now we define the psychiatry, forensic psychiatry. Forensic psychiatry is the subspecialty of the psychiatric medicine, which deals with the patients and problems at the interface of legal and psychiatric illnesses. Simply, we say that forensic psychiatry deals with those patients who has committed offenses uh, when they are ill. What is the interaction between the two uh, subjects? One is forensic, other is the psychiatry. Psychiatry as applied to the law. You know, the forensic means law. Psychiatry as applied to the law. Uh, we take criminal responsibility. What is the responsibility of a person when he commits an offense? Is he responsible for his acts or, uh, or something wrong in his mind? What is wrong in his mind? Competency to stand trial, evaluation, whether uh, a person who commits an offense, uh, he is liable for punishment. Testamentary capacity is the statement of the person about uh, any material thing. Malpractice, disability, any. The second one is the law as applied to the psychiatry. Law that affects psychiatric practice, confidentiality. These are dealt under the forensic psychiatry. Going further,
explain it as simple. Forensic psychiatry deals with application of psychiatry in the administration of justice. As I previously said, that the forensic psychiatry deals with patients who has committed offenses while ill. It's an investigation of the relationship between mental disorder and criminal behavior. It also assesses the mental disorder offender person who commits the offender are those who commit the crime. The forensic psychiatry gives a psychiatrist who are a specialist in the subject. They give their opinion on the state of mind of the accused and accused person after that examination at the time of committed offense and present state of the person in fact. So what was the mind condition of the person when he committed the uh, offense in state of his mind and the in present scenario when there is a trial being conducted in the court and their opinion the case may be proceeded further on or otherwise if the person is not able to stand trial due to some mental condition. Mental disease and defect. A person is unable to understand the nature, character, or consequence of his actions due to some disease or defect of his mind. Even he is unable to distinguish right from wrong. He don't know what is right, what is wrong, what is he is doing is wrong or right. At the time of committing any crime. Unable to control one's impulse to act, he cannot control his actions due to some state of the mind. But the standard-wise varies from state to state. Every country has its own law, and it was their law varies from uh, crime to crime and their punishment. What are the domains of the forensic psychiatry? Criminal domains, competence to stand trial, uh, केस की अगर हम ये इस तरह कहें कि कंप्यूटर सिस्टम है कि वो अपने केस की नौयत को समझता है और अदालत में पेश हो असेस क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट उसकी असेसेस करेगी कि इसका माइंड सही माइंड या माइंड सही नहीं है कैन stand and give statements and justify his actions. But when the person is insane, he cannot uh, say the right or wrong, differentiate between right and wrong. Sentencing considerations, capital mitigation, risk, and justice. These are the domains of the criminal law and civil law, contracts, marriage, testamentary capacity of the person, negligence and malpractice, disability, psychic injury, child abuse, neglect, custody issues are some topics which are related with the forensic psychiatry. Legal and regulatory administration. Treatment of the patient, dangerousness for the society and for the himself, कितना वो खतरनाक है अपने लिए पेशेंट और सोसाइटी के लिए ये कंसिडरेशन होती है और फिर उनकी जो है केयर एंड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कंसर्न
तीन चीजें हैं। क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल इंसेनिटी एंड लीगल? Any person who is suffering from any kind of mental illness is called medical insanity. But legal insanity means person suffering from mental illness but also have a loss of reasoning power. So reasoning जो है वो उसकी जो है लॉस है, उससे समझ की चीजों की समझ में जो है मुश्किल आते हैं और वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। लीगल इंसेनिटी वहां पर शुरू होती है जब मेंटल स्टेट अपने पर्सन का जब वो क्राइम करता है तो उस वक्त उसकी पोजीशन मेंटल स्टेट क्या है और उसने उस वक्त से समझ की चीजों की नहीं थी। वो क्या क्राइम कर रहा है या ऐसे ही जो है कोई काम कर रहा है। उसे सेन पर्सन को जो उसको हम सेन कहते हैं उसको ये समझ होती है कि कौन सी चीज जो है वो क्राइम है, जुर्म बनता है और वो उसे अवॉइड, क्योंकि उसे मालूम है, समझता है कि ये जो है काम गलत है और वो नहीं करता। लेकिन एक नासमझ या नादान आदमी वो काम कर लेता है तो उसे, क्योंकि वो समझता है कि ये भी कोई नॉर्मल तरीके से काम है, हालांकि वो ठीक है। अब आते हैं इनसेन पर्सन और फेन पर्सन। फेन पर्सन में ये होता है कि समटाइम जो है कुछ लोग जो है शब्दाबाजी करते हैं, वो पागल नहीं होते, इंसान नहीं होते, मगर वो इंसान का रूप अख्तियार करते हैं। तो देयर इज ए differentiation between the true insanity and the pain insanity. अगर हम देखें तो उनके फीचर्स में ऑनसेट एंड मॉर्टम देखेंगे तो ट्रू मेडिसिन में यूजुअली ग्रेजुअल एंड रेयरली सडन बट ऑलमोस्ट ऑलवेज विदाउट एनी मोटिव। पेन इंसेनिटी में यह है कि ऑलवेज सडन होता है एंड देयर इज सम मोटिव, उसकी कोई ख्वाहिश होती है या उसका कोई दिमाग होता है, मुतालबा होता है कि मेरा ये मुतालबा पूरा हो जाए और अगर नहीं हो पाता तो उसके लिए जो है कुछ जो है अपने आप को इंसेन बनाना, शो करना चाहता है। प्री डिस्पोजिंग या एक्साइटिंग क्या है? ट्रू इंसेनिटी में मे बी प्रेजेंट लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेनिटी इन पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, while in failed insanity में no such history। फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के तासुरात नॉर्मल आदमी के और फेन इंसेन। जो ट्रू इंसेन होगा वो तो फेशियल जो है पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन जो होंगे फेस पे मरीज होगा, एजुकेटेड होगा, जबकि फेन इंसेन जो है वो है वो नॉर्मल होंगे उसका या जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। साइंस सिम्टम जो बड़ा चीज, टू इंसान पर्सन जो है वो साइंस सिम्टम शो करता है इंसेनिटी के रेस्पेक्टिव ऑफ इसका ऑब्जर्व करना, कोई उसको देख रहा है नहीं देख रहा है तो उसको चेक कर रहा है या जो है दूसरा कोई उसको देख रहा है तो ऑलवेज ही आशी शो द जो है साइंस सिम्टम का जो ट्रू इंसान होगा। जबकि फॉल्स इंसान ये है कि वो देखेगा कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो शो करेगा ऐसे जो है निकट को के ये इंसान। लेकिन जो भी कोई ऑब्जर्वेशन से जो है
नजर आएगा, कोई नहीं देख रहा है, या तो वो अपने नॉर्मल के लिए उनके होता है। लेकिन जब भी कोई चेक करने के लिए आता है, डॉक्टर है या कोई दूसरा ऑब्जर्व करना शुरू करता है, तो वो फिर जो है एबनॉर्मली शो करना शुरू करता है, ताकि लोग उसको जो है इनसेन समझें। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड सिम्टम्स में ट्रू के लिए ये होते हैं कि अ, वो कोई शिजोफ्रेनिक होगा, या बाइपोलर को जैसा होगी, कोई मेनियक को वो होगा। जबकि पेन एंड सैनिटी में ए नॉन सेम पर्सन do whatever comes into his mind, and his signs and symptoms do not indicate a particular type of insanity. तो साइकाट्रिस्ट के लिए बड़ा आसान होता है कि वो ट्रू इंसान में और फेल इंसान में डिस्टिंग्विश कर ले। ये चंद चीजें हैं जिनको जो है खास तौर पे फर्क में दोनों में देखा जा सकता है कि ट्रू इंसानिटी क्या है, ट्रू इंसान पर्सन में क्या फीचर होते हैं, और फेल इंसान में क्या फीचर होते हैं। अब थोड़े फिर जो है डायग्नोसिस की बात भी हो जाए। कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द असेसमेंट एंड लॉ प्रिफरेंस। लॉ क्या कहता है? एवरी कंट्री का, हर कंट्री का एक लॉ होता है। लॉ ये कहता है कि एवरी पर्सन इज सेम अनलेस कंट्री इज ट्रू। हर आदमी मासूम है, हर आदमी मासूम है जब तक उस पर कोई चीज प्रूफ ना हो। मासूम का मतलब ये कि वो मुजरिम नहीं है, या उसने कोई खराबी नहीं की है, तब तक वो जो है मासूम। जब तक कोई चीज उस पर साबित नहीं हो जाए, तब जब साबित होता है तब उसको मुजरिम कहते हैं। या जो है उसको जो है फिर सजा कोर्ट वगैरह। इट इज प्रूडेंट टू स्टार्ट असेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि हमारा ये टॉपिक फार्मेसी साइकाट्रिक प्रॉब्लम से वह लॉ की तरफ है उसका लिंक लेता है, तो हम लॉजिकल बातें भी करते हैं। आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, depending upon this medical state, this examination of the patient, ward observation means अगर पेशेंट को एडमिट किया जाए, उसे ऑब्जर्व किया जाए, उसके उठना बैठना, नॉर्मल खाना पीना, वॉशरूम तक जाना, सोना, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए, उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किए जाए, उससे इंटरव्यू वगैरह किए जाए, ये बातें इन्वेस्टिगेशन की जाए, तब जो है फाइनल जो है एक ओपिनियन बनता है। साइकाट्रिस्ट शुड मेक ऑनेस्ट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड opinion regarding the patient's diagnosis and present medical state. ये साइकाट्रिस्ट का जो है काम होता है कि वो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, इंटरव्यू भी करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन भी करे और अंडर ऑब्जर्वेशन भी करे, फिर अपना ओपिनियन दे वेदर द पर्सन इज सेम और नॉट। फिर वो चीज जो है कोर्ट के पास होती है एंड फाइनल कंक्लूजन ऑफ द केस। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो इनसेन है या जिनको मेंटल हम जो है इलनेस कहते हैं, पेशेंट कहते हैं, उनके बारे में कायदा कानून क्या है? तो पाकिस्तान में 47 में 1947 में आज़ादी के बाद हमारे पास जो पहला कानून था वो था ल्यूनेसी एक्ट ऑफ 1912, जो कि ब्रिटिश ने इंडिया में, ब्रिटिश इंडियन में, जिसमें पाकिस्तान भी उसी जियोग्राफी में था, तो ये कानून था। तो 47 में वो ये ल्यूनेसी एक्ट हमने पाकिस्तान में मिला और उसको हमने चलाया, और बड़े बड़े
पाकिस्तान में उस वक्त 3 हॉस्पिटल थे और 2 हॉस्पिटल जो है मशहूर थे, एक लाहौर का मेंटल हॉस्पिटल और एक हैदराबाद का मेंटल हॉस्पिटल जो विधु बंदर के नाम से मशहूर है। ये ब्रिटिश ने कायम किए थे ल्यूनेसी एक्ट के तहत, और जो ल्यूनेटेड पर्सन होते थे उनको वहाँ एडमिट किया जाता था, उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन फिर बाद में जो है हालात वाक़यात के मुताबिक कुछ ह्यूमन राइट्स वालों ने कुछ मुतालबात और कदम उठाए, तो फिर एक ऑर्डिनेंस 2001 में पाकिस्तान में बना, उसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस ऑफ 2001। इसके तहत जो था कि साइकाट्रिस्ट इन पाकिस्तान आर नाउ बीइंग फ्रीक्वेंटली टू सर्व एज एक्सपर्ट विटनेस इन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और ये बड़ा काफी कुछ लिखा हुआ है, और इसमें साइकाट्रिस्ट को क्या करना है और पेशेंट्स को जो है थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन दोबारा किया है कि मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है, और उनकी एडमिशन और उनकी जो है कैटेगरीज के बारे में कुछ उसको एलिब्रेट किया गया है। अब जो इस नए आया उसके तहत उसको जो है ल्यूनेटिक या ल्यूनेसी के में कहा कि मेंटल हेल्थ इसको डिस्कस करें। तो अब व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ डिस्क्राइब्स ए लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग और एन एब्सेंस ऑफ ए मेंटल डिसऑर्डर। WHO has defined mental health as a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life and work productivity, fruitfully, and able to make a contribution to his or her community. ये सेम पर्सन की या जो है उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है WHO ने कि वो एक सेम पर्सन या मेंटल हेल्थ हेल्दी पर्सन जो है वो उसकी वेलबीइंग और जो है अपनी प्रोडक्टिविटी और फ्रूटफुलिटी अपने लिए और अपने कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब आते हैं मेंटल इलनेस की तरफ। तो मेंटल एंड behavioral disorders are clinically significant conditions characterized by alterations in thinking, mood, emotions, or behavior associated with the personal distress and impaired function. We changes in thinking, memory, perception, feeling, judgment, and the speech of a person are altered in mental illness. Disturbance day-to-day activities वो परफॉर्म करता है, उनका जो है वो एंड रिजल्ट जो है वो सही नहीं निकलता। तो वर्क एंड रिलेशनशिप विद इम्पॉर्टेंट वही उन लोगों के लिए मिलने वालों से दूसरे लोगों से उसका रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल है या अदरवाइज। तो ये जो है अदरवाइज है, लयन से हटा हुआ है, तो उसको हम मेंटल इलनेस की वो कहते हैं। Significance क्या है? Evidence from WHO suggests that nearly half the world's population are affected by mental illness. देखिए कितना बड़ा दावा करना है WHO। ठीक है, बड़ी पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो कुछ मेंटल इलनेस उनकी जो है शो हो रही है, with an impact on their self-esteem, relationships, and ability to function in everyday life. वो कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन दिखाते हैं नॉर्मल से, बिलो द नॉर्मल लोग। An individual emotionally health can also impact physical health and poor mental health
can lead to problems such as substance abuse, नशा करते हैं और नशा वाली चीजों को चलाते हैं. The importance of the maintaining good mental health is crucial to living a long and healthy life. WHO कहता है कोशिश है कि हेल्थ को इस तरह की किया जाए लोग जो है वो नॉर्मल हों और वो जो है हेल्दी हों और अपने लिए अपने मुल्क के लिए प्रोडक्ट. गुड मेंटल हेल्थ एंड एनहांस वंस लाइफ. बिल्कुल ये वो चाहते हैं WHO वाले, जबकि वो कहते हैं कि पुअर मेंटल हेल्थ कैन प्रिवेंट समवन फ्रॉम लिविंग नॉर्मल. पुअर मेंटल हेल्थ वाला बंदा जो है वो नुकसान में होता है. अब मेंटल केसेस को, हेल्थ प्रॉब्लम पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए क्या तरीका है. अब हम देखते हैं कि इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट का जो है इस मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है इजाजत हो गई. Involuntary treatment, this can occur when the psychiatrist recommends someone needs treatment. And general population में से जो भी खुद चल के आएगा साइकियाट्रिस्ट के पास उसको ट्रीटमेंट मिलेगी, जबकि इससे पहले जो था गवर्नमेंट या पुलिस वाले सिर्फ जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए रेफर करते. अब ये कि अब थोड़ी सी जो है डेफिनेशन है जो कि इस 2000 मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 में डिस्क्राइब की गई है कि इंसेन पर्सन. इसकी डेफिनेशन उन्होंने ये बनाई है कि डेफिनेशन ऑफ इंसेन इज समवन हु एक्ट्स और स्पीक्स स्ट्रेंजली बिकॉज देयर ब्रेन इज नॉट वर्किंग करेक्ट. अब उन्होंने इसको ब्रेन के साथ लिंक किया है कि उसकी जो एक्शन है या स्पीक है स्ट्रेंजली बिकॉज देयर ब्रेन इज नॉट वर्किंग करेक्ट. अब मेंटल इलनेस ऑफ ए सच सिवियर नेचर दैट ए पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश फैंटेसी फ्रॉम रियलिटी. उसे रियलिटी और फैंटेसी की डिस्टिंग्विश पता नहीं चल सकती. ये वही बात है जो पहले भी हो चुकी है कि राग और ग्रंथ में फर्क नहीं होता. कैनॉट कंडक्ट her or his affairs due to psychosis or is subject to uncontrollable impulsive behavior. अब इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, पार्टी भी बनाई है मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ अथॉरिटी. और इसका काम और उसका जो है कंपोजिशन कैसे है. इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट and it will have a chairperson and former members and will be appointed for 4 years. इस सेक्रेटरी हेल्थ फेडरल गवर्नमेंट का है, वो उसका जो है वो शामिल है. देन प्रोविंस, चार प्रोविंस है, उनके सेक्रेटरी हेल्थ भी इसमें इंक्लूड है. और एक एडवाइजर इन साइकियाट्री GHQ आर्म्स फोर्सेस की तरफ से भी एक नुमाइंदा उसमें शामिल है. और 7 eminent psychiatrists of 10 years training of experience, good experience वाले वो भी उसमें शामिल किए. तो ये बड़ा अथॉरिटी बनाई हुई है जो ऐसे मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस को वॉच भी करता है. पेशेंट्स की बारे में भी जो है टाइम टू टाइम ये अपनी सिफारिशात गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को पेश फॉर द वेलबीइंग ऑफ द मेंटल पेशेंट. नाउ फर्दर definitions are given in the mental health ordinance. Mental disorder, इसकी डेफिनेशन उन्होंने इस तरह बनाई है कि it means mental illness including mental impairment or severe mental impairment, severe personality disorder or any other disability of mind. Mental impairment means arrested or incomplete development of mind and several mental impairments.
mental impairment also includes significant impairment of the intelligence, social functioning, यानी उसकी जो है इंटेलेक्चुअल लेवल या जो है सोशल लोगों की साथ सोशलिटी कैसी है, एग्रेसिव बिहेवियर है, बिहेवियरल चेंजेस हैं, या जो है नॉर्मल है, या उसकी जो है वो जो है एग्रेसिव तो जो है वो तरीकाकार बना रहता है। तो सिवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है पर्सिस्टेंट डिसेबिलिटी ऑफ माइंड है, तो वो काफी देर तक और लगातार टाइम तक कंटिन्यूसली वो जो है इम्पेयरमेंट उसकी इंटेलिजेंस, जहानत के लिहाज से और समझ के लिहाज से बंदा जो है वो लेवल में नहीं है, सही लेवल पर नहीं है, और वो जो मेंटल स्टेट है या पर्सनलिटी डिसऑर्डर में, वो अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है और नुकसान है। उसको सीवियर पर्सनलिटी डिसऑर्डर के तहत में किया गया है। अब मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत जो है पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट या डिटेंशन के बारे में भी इसमें उन्होंने एक सेक्शन दिया है जिसको सेक्शन 10 कहते हैं कि डिटेंशन ऑफ मेंटल पेशेंट और असेसमेंट, ट्रीटमेंट, आफ्टर एडमिशन एंड एमरजेंसी होल्डिंग। इसका तरीका उन्होंने दिया है कि दो मेडिकल ऑफिसर जिसमें से एक अगर साइकाट्रिस्ट हो तो वो एप्लीकेशन जो है एक पेशेंट को जो वो रिकमेंड करते हैं कि इसको अटेंड किया जाए। When application for admission for assessment can be made by कोई भी घर का फर्द, हस्बैंड है, वाइफ है, फादर है, कोई ऐसा घर का बड़ा फर्द, वो एक एप्लीकेशन दे देता है। इस पर जो है दो डॉक्टर मान्य करते हैं और मान्य करने के बाद वो ओपिनियन देते हैं कि इस ही और जो भी ये है पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो जो है डिटेल किया किसी हॉस्पिटल में फादर केयर एंड ट्रीटमेंट, और वो लिखते हैं कि ही और शी सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ ए सच नेचर और डिग्री which warrants the visitation of the patient in psychiatric facility for assessment or for assessment followed by the treatment। तो ये उनकी राय जो है इस तरह होगी तो वो पेशेंट को अस्पताल में एडमिट किया। अब उस लेटर पे जो है दोनों डॉक्टर जो है वो मुआयना करने के बाद ओपिनियन भी लिखते हैं और अपना नाम और जो है सिग्नेचर वगैरह करते हैं। अच्छा, अब if that patient is admitted for assessment and is found not mentally disordered, उसका एडमिशन करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसको देखा, बाकी टेस्ट किए और बिहेवियर किए और इंटरव्यू करने के बाद उनको यकीन हो गया कि वो अपना अपने आप को संभाल सकता है और जो है केयर कर सकता है, तो वो उसको छोड़ देते हैं और उसको जो है कहते हैं कि घर में रहे और अपना घर में जो है अपना ट्रीटमेंट लेगा जरूरत है। एप्लीकेशन बाय रिलेटिव फॉर डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड, अगर कोई एडमिटेड केस हो गया तो वो फिर जो है रिलेटिव एप्लीकेशन अगर लेकर दे देते हैं कि ये पेशेंट हमें वापस दिया जाए, हम इसकी केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देते हैं। मजिस्ट्रेट फिर साइकाट्रिस्ट को फॉरवर्ड कर देता है कि इनको अलाउ किया जाए या इनका जो है एप्लीकेशन अगर उसकी हालत अच्छी नहीं है तो वो तो खारिज ना करें पेशेंट। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि दीवाने लोग
दीवाना कहें इनको, मेंटली डिसऑर्डर पर्सन फाउंड पब्लिक प्लेसेस, बाजारों में, स्ट्रीट्स में, मैदानों में, पब्लिक प्लेसेस पे वॉन्डरिंग करते हुए कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? क्योंकि उनके साथ रिलेटिव कोई नहीं है या कोई और देखभाल वाला कोई आदमी नहीं है। वो अगर स्ट्रीट्स में, पब्लिक प्लेसेस में, रोड पे, अवामी मकामात पे कोई गड़बड़ करते हैं, कोई मामला खराब करते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? उनके लिए फिर ये हुक्म है कि उन पुलिस स्टेशन जहाँ उनके वजूद है, जुरिस्डिक्शन है, वहाँ का एसएचओ इज रिस्पॉन्सिबल, उसको मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि हर एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर अपने थाने की हदूद में ऐसे किसी भी फर्द को देखे तो उसे जो है कि वो लगता हो कि वो इंसान है और वो सफर भी कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर में है, और आवाम के लिए या अपने लिए वो नुकसानदेह है, तो वहां से उसे पकड़ कर किसी सरकारी हॉस्पिटल में उसे पेश कर देते हैं डॉक्टर के पास कि इसको मुआयना किया जाए, उसका इलाज। तो ये स्टेट की तरफ से जो है ऐसे जो इन लोगों में पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी जगह पे अगर किसी मेडिकल डिसऑर्डर से केस हो सकता है, और उसे जो किसी जेल में डालने का नहीं, बल्कि उसे किसी साइकाट्रिस्ट हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट का उसमें जो है पेश करे, और साइकाट्रिस्ट उसे उसका जो है एग्जामिन और फर्दर एडवाइस। अच्छा, वो जो बंदा पकड़ा गया, जिसने पकड़ लिया, तो साइकाट्रिस्ट या मेंटल हॉस्पिटल में उसे 72 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाए, और उससे जो है मेडिकल ऑफिसर उसे देखेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, केयर भी करेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे, और उसके बाद में असेसमेंट दे देंगे। अब कुछ चीजें और भी मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस में डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि अब मेंटल पर्सन की डेफिनेशन उन्होंने दी कि कोई इंसान पर्सन, फिर उन्होंने दिया कि जी उसको इनवॉलंटरी एडमिशन भी उन्होंने उसको राइट दे दी कि वो साइकाट्रिस्ट से अपना खुद इलाज कराए या अपना रिलेटिव से अप्रोच करे और ट्रीटमेंट घर में रहे। फिर उन्होंने जो ऐसे करते रहते हैं और स्ट्रीट्स वगैरह में जिनके साथ कोई भी नहीं होता है, मतलब तो उनको जो है ऐसे तो को और दिया है कि वो उन्हें पकड़ कर साइकाट्रिस्ट या साइकाट्रिस्ट उसका इलाज के लिए दाखिल करें। इस ऑर्डिनेंस में कुछ और चीज भी उन्होंने आगे की भी उन्होंने वो दे दी है कि प्रॉपर्टी, अगर फर्ज करेगा उसका जो है वो प्रॉपर्टी की, और मतलब वो चीजें उसकी देखभाल, वो अपना देखभाल नहीं कर पाता है तो अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए मुश्किल है, तो उसके लिए क्या तरीका होना, तो वो भी ऑर्डिनेंस, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस में उन्होंने दी हुई है कि उसका प्रॉपर्टी का देखभाल के लिए भी गवर्नमेंट या स्टेट स्टेट। अब फर्दर कुछ मेंटल एयर पर इम्पेयरमेंट के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकली डिसऑर्डर, सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट, तो ये कैटेगराइज है जिनमें माइल्ड केसेस होते हैं वो अपना केयर कर सकते हैं,
घर में इलाज भी करा सकते। और कुछ है जो सीवियरली जो है अफेक्टेड है लोग हैं, उनकी डिसेबिलिटी है, उनकी इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है भी है, या वो फिर एग्रेसिव या सोसाइटी के लिए हार्मफुल बन जाती है, तो उनको जो है काबिले डिटेंशन बनाया गया है। और फिर जो है जो उनकी सर्टिफिकेशन साइकाट्रिस्ट देते हैं। और अगर समटाइम जो है वो स्पाउस जो होते हैं वो अदालत में कोर्ट में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि इस इंसेन पर्सन के साथ मेरा अंतर जो है लाइफ और जो है वो टोरी का खतर, इसके साथ नहीं जिंदगी भर गुजारा कर सकूंगा या कर सकूंगी। तो वो अदालत को अप्रोच करते हैं कि उनका निकाह जो है वो निकाह जो है उनका वो कर दिया जाए, अदालत के जरिए खत्म किया। तो इस तरह के भी केसेस जो है वो आगे जाते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट कोई मैनेजर वगैरह अपॉइंटमेंट कर देते हैं जो कि उस से असर की प्रॉपर्टी की देखभाल। अच्छा, अब कुछ और प्रिजनर प्रिजनर जेल में होते हैं या उनको जो है जेल की सजा मिल जाती है, तो वो भी बात जो है वो बड़े डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं, सोसाइटी से इकट्ठे होते हैं, फैमिली से जो है अलग होते हैं, फिर पॉवर्टी और की वजह से भी, और फिर उनकी जो सोशल लाइफ है वो लो हो जाती है, लाइफ स्टाइल कम आ जाती है जेल में जाते, तो वो लोग भी वहाँ पर जो है मेंटली जो है पेशेंट बन जाते हैं। तो उनके लिए उन्होंने एक डेफिनेशन की है कि मेंटली डिसऑर्डर प्रेजेंट कौन होते हैं। It means that a person who is a prisoner for whose detention in or removal to a psychiatric facility or other place of safety and order has been made in accordance, उनको भी जो है जेल से साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में फैसिलिटी या एडमिशन दिया और उनकी वहाँ देखभाल किया जाए, बजाय ये कि वो जेल में फर्दर हो या फर्दर जो है हालत खराब हो, उनको जेल से साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में केयर एंड ट्रीटमेंट ऑन ए इनफॉर्मल वॉलंटरी बेसिस, उसके बारे में मेंटल हेल्थ में लिखा हुआ है कि एनी पर्सन हु हिमसेल्फ सीक्स or is brought by a relative and is referred by a medical practitioner and is referred, ये तरह उन्होंने खुल के बयान की है, is referred by any authority for forensic psychiatric assessment shall be examined by a psychiatrist or a medical officer nominated by him. तरीकाकार वही है, and the doctor should record findings, writing, and give their opinion about the patient for the treatment. Any such person or withdrawal of his consent may be discharged in accordance with the provision of ordinance. उनको अपने जो है कंसर्न पे छोड़ देना या इलाज करना का जो है वो को डॉक्टरों को अख्तियार किया गया है वॉलंटरी बेसिस। अब एडमिशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एडमिशन ऑफ ए मेंटल पर्सन, थोड़ा सा वजाहत के साथ कि कौन से लोग हैं जिनको जो है एडमिशन मिलती है, उसका तरीका क्या है। An application for admission or assessment may be made in respect of a patient on the ground that he or she is suffering from mental disorder of a nature or degree which warrants the detention of patient in a psychiatric facility for assessment for at least a limited period.
are easy or determined and establish the own public or safety or the review to protect. Find that the care treatment the community are not कि उसको दाखिल किया जाए, उसकी एडमिशन की जाए और यानी घर में उसका रहना या इलाज जो है वो इतना जो है फायदामंद नहीं हो रहा है, तो उसे एडमिशन किया जाए। उसका तरीका ये है कि किया जाए एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ असेसमेंट, पहले उसकी असेसमेंट कायदा कानून ये कहता है कि ऐसे नहीं कि आपने कहा कि ये पागल है तो उसको पागल खाने या कायदा कानून ये है कि आप उसे मानना चाहिए और असेसमेंट करें, फिर अपने ओपिनियन डॉक्टर बनाए। At least two medical practitioners, one should be psychiatrist and one should be the medical officer. अगर जहाँ पर पूरा psychiatrist and qualified पोस्ट ग्रेजुएट हो, साइकाट्रिस्ट है और उसकी एक्सपीरियंस है, तो वो अपनी ओपिनियन दे सकता है। मगर अब हमारे मुल्क में मेंटल केस ज़्यादा है, मगर साइकाट्रिस्ट या जो है न्यूरो मेडिसिन के जो डॉक्टर है या न्यूरो साइकाट्रिस्ट जो है और उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है हमारे मुल्क में। इसलिए इस ऑर्डिनेंस में ये गुंजाइश भी रखी गई कि एनी डॉक्टर वो हैव एक्सपीरियंस इन साइकाट्री जो एमबीबीएस है, मतलब उसने जो है साइकाट्री काफी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस वाला भी जो है वो अपनी ओपिनियन दे सकता है और पेशेंट की जो है वो एडमिशन के बारे में अपनी राय दे सकता है। तो ये जो है रिलीफ उसमें शो की गई है आगे। फिर वो ये कि वो जो बाहर घूमते रहते हैं उनको जो है ऐसे तो जो है निकल जाएगा, एडमिशन कराएगा, 72 आवर्स के लिए या हॉस्पिटल में वो दाखिल रहेंगे और उनकी जो है वहाँ केयर भी होगी, ट्रीटमेंट भी होगी और उनकी बाद में उनकी सपोर्ट भी। एक चीज हमने पहले भी कहा कि उसकी जो प्रॉपर्टी की देखभाल, उसकी सोशल जो मामला हैं या जो है उसकी मैरिज की बात भी हमने की कि स्पाउस समटाइम जो है वो चले जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास, एप्लीकेशन देते हैं, निकाह वो जो है अगर बीवी चली जाती है कि खावन मेरा जो है वो इंसेन है और वो जो है काबिल नहीं है कि वो अपने आप को संभाले या मुझे संभाले या घर संभाले या बच्चों को संभाले, खर्चा लाए, वो फिर अदालत में था, उनके शोहरों को भी जो है अदालत वाले और इसी तरह जो है शोहर भी बाधा पर किसी जो है हालत को देखते हुए अदालत में जा सकते। अब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए भी उन्होंने जो है इस ऑर्डिनेंस में गुंजाइश रखी हुई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सरपर्स का बनाना अदालत के जरिए when a mentally disordered person is incapable of taking care of himself and the court appoint any suitable person to be his guardian or order him to be looked after in a psychiatric facility and order for his कि कोर्ट फिर किसी भी शख्स को किसी को भी मैनेजर या गार्डियन उसको लिखते हैं, मगर उसका काम ये होता है उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो अर्बन प्रॉपर्टी है, चाहे वो रूरल है,
या बैंक में कुछ है, तो वो मैनेजर जो है उसको संभालेगा, अकाउंट्स को देखेगा और अदालत को प्रपोज करेगा। और अदालत जो है वो एक अमाउंट मुकर कर देगा कि इसको खर्चे के लिए, इसके खर्चे के लिए इतनी रकम जो है वो गार्जियन देता है और जमा कराता है अदालत के। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मेंटली